کیا وہ ریلیشن ہے اس کے ساتھ ہمارا کہ ہم اس کے بیسٹ فرینڈ ہیں؟ یرمیا بھی اسی بات پہ جو ہے وہ کیا کہتے کلپ رہا ہے، کھپ رہا ہے، کہہ رہا تو نے ان کو لگایا، انہوں نے جڑ پکڑ لی، وہ برو مند ہوئے. یعنی کہ مسیح نے ہمیں ہر چیز دی، ہمیں ترقی دی، ہمیں اسٹیبلش کیا، ٹھیک ہے، اور پھر بھی وہ ہمارے منہ تک ہی ہے. ہم نے اس کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ ہم میں سرایت کرے، ہم میں بس جائے. صرف وہ ادھر ادھر اوپر اوپر تک رہا ہے ابھی بھی. اور اس نے ہمیں لگایا، وہ ہمیں اس ملک میں لے کر آیا، اس نے ہمیں ترقی دی، اس نے ہمیں اتنی آسائشیں دی، ہمیں اولاد دی، اس نے ہمیں اچھے پیرنٹس دیے، فکر کرنے والے دوست احباب دیے، وہ لوگ جو ہماری بیماری میں ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اس نے وہ ایسے لوگ ہمیں مہیا کیے. اور پھر بھی وہ ہمارے گلے سے نیچے یعنی کہ ہونٹوں اور زبان تک ہی محدود ہے ابھی بھی. اس کی پناہ گاہ ہم نے ادھر تک کی بنائی ہوئی ہے، چھوٹی سی. تو ان کے منہ سے نزدیک اور ان کے دلوں سے دور ہے. وہ یہ گلا کر رہا ہے، یرمیا یہ گلا کر رہا ہے کہ تو نے ان کو لگایا، تو نے ان کو اتنا کچھ عطا کر دیا اور پھر بھی ان کی زندگی میں تیری اتنی ہی سی امپورٹنس ہے. یرمیا الٹا گلا کر رہا ہے خدا سے کہ دیکھ خدا، تو جو ان کو اتنا پیار کرتا ہے اور ہر مشکل میں، ہر ایسے کریٹیکل ٹائم میں تو جو ان کو سنبھال لیتے اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتا ہے، وہ لوگ یہ ہے ان کی زندگی میں امپورٹنس اتنی کو نزدیکی ہے ان کے پاس. اور پھر حزقیل، یہ سایہ نے، یرمیا نے ان باتوں کو بیان کیا. اور پھر حزقیل اس کا 33 چیپٹر 31 to 32 ورس میں لکھا ہے، خدا حزقیل کو بتاتا ہے پھر وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے ہیں اور میرے لوگوں کی مانی تیرے آگے بیٹھتے ہیں اور تیری باتیں سنتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو بہت محبت ظاہر کرتے ہیں پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے. ایمین. واٹ اے بیوٹیفل تھنگ. دیکھیں، جائزہ لیں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. ہم بیٹھتے ہیں، ہم چرچز میں جاتے ہیں باقاعدگی سے، کیونکہ خداوند کا حکم ہے. یسایہ اس کے 57 چیپٹر میں خداوند کا یہ حکم ہے کہ اگر سبت کے دن تو اپنے پاؤں کو روک رکھے، اپنے دل کی خواہشوں کو تو چھوڑ دے، ان سے دستبردار ہو، تو میرے پاس آئے تو میں تجھے یعقوب کے گھرانے سے کھلاؤں گا، میں تجھے آسمان کی بلندیوں پر لے جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ خدا کے وعدے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. ہم خدا کے سامنے جا کے، خدا کے مذبح کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں ہر سنڈے، ہم ہر روز اسکائپ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، ہم خداوند کے منہ کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم پورا آدھا گھنٹہ سرمن کو سنتے ہیں، لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو بہت محبت ظاہر کرتے ہیں پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے. جہاں بھی جس دن بھی ہمیں اپنا فائدہ نظر آیا، وہاں پر ہم نے اس وقت کو کیا کیا، اسکپ کر دیا. نو، نیور. یہ نزدیکی نہیں ہے. اگر نزدیکی ہے تو دنیاوی، اگر اس رشتے کو نہیں تو دنیاوی رشتے کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں. جو کچھ مرضی ہو جائے، جتنے مرضی لڑائی جھگڑے ہو جائیں، جیسا مرضی ہو جائے، جو میری مدر ہے وہ میری مدر ہے. ایسے ہی ہے نا، میں اس سے بڑھ کر نہیں کسی اور کو امپورٹنس دے سکتی. بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہم کہتے ہیں جو میرا آسمانی باپ ہے میں اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں امپورٹنس دے سکتی، وہ میرے بچے ہوں، میرا ہسبینڈ ہو، میرے پیرنٹس ہوں، میرے بردر سسٹرز ہوں، میں نہیں کسی کو امپورٹنس دے سکتی. کبھی ایسے بھی فکرہ فٹ ہوا ہے؟ کہہ رہے ہوں گے سسٹر سائمہ تنقید کر رہی ہیں، کیونکہ سسٹر سائمہ کا بھی دل کرتا ہے کہ مسیح کا آنا جلد ہو، تاکہ ہم سب میں سے ہر بہن بھائی، ایک ایک پرسن ہر فیملی میں کھڑا ہو جائے، رخنوں میں کھڑا ہو اور پوری پوری فیملی کو تیار کر لے، تاکہ ہم مسیح یسوع کی آمد کے انتظار میں نہیں بیٹھنا. ہم نے اس بات کی خوشی سیلیبریشن کرنی ہے کہ وہ آ رہا ہے.
खुदावन का जिंदा पाक कलाम जो है, खुदावन ने अपने मुंह से इकरार किया, और दाऊद जो है वो भी इस भेद को लिखता है 45 ज़बूर में, 145 ज़बूर उसके 18 आयत में, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आमीन। खुदावंद उन सब के करीब है, लेकिन हिजकिय्याह भी बेचारा खप रहा है, ठीक है। वो खुदा के, यानी कि खुदा ने हिजकिय्याह को भी बता दिया कि ये नापाक कौम जो बुतों की परस्तिश करती है, इनके दरमियान मैं नहीं मौजूद। तो ये तो समझते हैं कि खुदा के नजदीक हैं, खुदा की चौखट पर बैठते हैं, गोया खुदा के करीब आने के लिए आस्ताना और चौखट का पता था। लेकिन यानी कि हम में से सबको पता है, हम में से सबको पता है, एक बहन भाई को पता है मसीह की मसलूबियत के बारे में, मसीह के दुखों के बारे में, हम इस चीज पर ईमान भी रखते हैं। लेकिन ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। कौन सा ईमान? लफ्जों में, होंठों से? ऐसा ईमान जो है बेफायदा है। बगैर अमल के ईमान मुर्दा है, हम सबको पता है। कभी यसाया की किताब को पूरा पढ़े ना हम, तो ये रोंकड़े खड़े हो जाते हैं। अगर उसको, उसकी मोहब्बत में है ना, हमारे अंदर उसकी मोहब्बत कहीं जाग रही है, तो बुक ऑफ मार्क को, उसके एंड वाले चैप्टर्स को पढ़े ना, तो दिल नहीं करता कि उनकी स्टडी की जाए। खुदा खुद आंसू आने शुरू हो जाते हैं जब जब इस बात का इल्म हो ना कि उसकी दाढ़ी को नोचा गया, तो एक भी बाल खींचा जाए ना, तो फिर वो कोई बेटा हो या बेटी हो, थप्पड़ तो उसने रसीद जरूर ही करना होता है। क्यों? दर्द हुई है ना, दर्द नहीं बर्दाश्त होती। उसने इतना दुख सहा, इतना दर्द सहा। क्यों? यूहन्ना की अंजील उसका 17 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो। आमीन। इसलिए दुख सहा, ये उसकी दुख की अहमियत है, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है, यानी कि जिस तरह हम बाप बेटा एक है ना, मैं तुझ में हूं, यानी कि ऐ बाप तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, हम दोनों एक हैं और वो हम में हो, ताकि हम सब जो बहन भाई हैं, हम क्या हों? मसीह यस्सु में हो जाए, ताकि हम उसको अपनी पनाहगाह बना लें, उसके कामों का बयान करें, तस्दीक करें, प्रूव करें, नॉट ओनली क्लेम। ये सिर्फ क्लेम कर लिया तो बात खत्म। बात होंठों और जुबान तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बात जो है वो थोड़ी सी इधर से नीचे भी गुजरनी चाहिए। इसलिए दुख सहा गया, ताकि वो हमारी पनाहगाह बन जाए। और जो लोग, और यसाया ने इस बात से आगाह कर दिया कि जो लोग जुबान से उसका इकरार करते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, लेकिन फिर अमल नहीं करते, तो उसने कहा, यसाया ने कौम बनी इसराइल को कहा, उनके सिर्फ होंठों से नजदीकी का रिजल्ट वो बताता है कि वो देखते हुए ना देखेंगे, यानी कलाम की समझ ना आएगी, और रूहानी अंधापन उनके अंदर जो है वो, और बेशक वाकई ऐसे ही रूहानी अंधापन था उनके उनके अंदर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस थी कि वो देखते हुए नहीं देखते थे, सुनते हुए नहीं सुनते थे, उनको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती थी। ऐसे ही है, जब हम खुदावन के पाक कलाम को सुनते रहते हैं, उसको धोखा देने की कोशिश करते हैं, उसको डॉट देने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को तो हम डॉट दें तो मसीह यस्सु को कैसे दे सकते हैं? खुदावन के पाक कलाम में लिखा है कि हर बात उससे बेपर्दा है, हर बात उससे बेपर्दा है। हमारा हर काम जो है, तो वो उनके साथ क्या करेगा? उन लोगों के सामने वो क्या करेगा? उनकी आंखों के सामने पर्दा आ जाएगा, हिजाब डाल देगा। हिजाब का पता है ना, यानी कि नकाब डाल देगा।
کہ उनको पढ़ेंगे लेकिन समझ नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी कि क्या कह रहे, सिर्फ दावा करने वाले ही रह जाएंगे, सिर्फ क्लेम करने वाले ही रह जाएंगे। तो अजीजों, वक्त अब वो नहीं है कि हम वक्त को जाया करते जाएं, नहीं आज नहीं कल, नहीं कल नहीं परसों, नहीं परसों नहीं तरसों, नो, अब तो वक्त ही नहीं है। हम देखते हैं कि ये अखीर दौर जा रहा है, क्योंकि अखीर जमाना में पहले मसीह ने क्या किया, तरह बतरह और नबियों की मार्फत कलाम किया, और अखीर जमाना में अपने बेटे की मार्फत, मसीह यस्सु की मार्फत कलाम किया। और मसीह यस्सु ने जब वो आसमान पर जाए तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा और एक दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हें सब कुछ बता देगा, समझा देगा। अब खुदावंद का पाक रूह जो है वो खुदावंद के लोगों के थ्रू, खुदावंद के खादमीन के थ्रू, खुदावंद के चुने हुए लोगों के थ्रू आपके सामने आता है और आपकी तरबियत करता है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के थ्रू आपको उन सच्चाइयों से आगाह करता है, ताकि हम सिर्फ होंठों तक नहीं, हम लालच पर नहीं दौड़े। अगर हमने उसको अपने नजदीक, उसकी नजदीकी को पाना है और चाहते हैं कि उसके नजदीक रहें, तो फिर हमें अपना नफा भी पॉल की तरह नुकसान नजर आना चाहिए। वो कहता है ये जो जितनी मेरे नफा की चीजें हैं, मैं इन सबको कूड़ा समझता हूँ। पॉल कहता है कि मैं इन सबको मसीह की खातिर कूड़ा समझता हूँ, और कहता है कि अगर कोई हर बात का जो है वो फायदा उठाए और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसको क्या हासिल। और आज हम कौम बनी इसराइल की तरह सिर्फ होंठों से, जुबान से उसकी ताजीम ना करें, और ऐसा नहीं कि हमारे दिल उससे दूर है और हम फक्त इंसानों की तालीम से खौफजदा होकर और मसीह यस्सु की नजदीकी को हासिल करें। नो, हम उसके उस प्यार, उसकी मोहब्बत, उसके उस कफारा को, उस खून को अपने सामने रखें, उसकी उन तकलीफों को, उन परेशानियों को अपने सामने। जी सिस्टर साइमा, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अपना आप माइक चेक कर लीजिए प्लीज। सॉरी, ये मेरा माइक म्यूट कर रहा है, आई थिंक मेरे से तो नहीं हो रहा, ये खुद से हुई जा रहा है। और खुदावंद का पाक कलाम आज हमें यही अजीजों बता रहा है कि हमें दिल से उसकी चाहत करनी है, दिल से आरजू करनी है और उसको अपनी पनाहगाह बनाना है, ताकि हम उस पनाहगाह के अंदर रहें और फिर कायम रहना है उसमें। जो आखिर तक कायम रहेगा वही जिंदगी का ताज पाएगा। जो आखिर तक हर मुसीबत, हर मुश्किल को, हर परेशानी को, हर ट्रबल को, हर सफरिंग को फेस करते हुए मसीह यस्सु को हमेशा अपनी जिंदगी में रखेगा, अपने सामने रखेगा, तो मसीह यस्सु भी कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं तेरी आंखों के तमाम आंसू पूंछ दूंगा। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को परखें कि हम किन बातों में अपने खुदा को पीछे छोड़ जाते हैं और अपनी बातों पर, लालच पर दौड़ पड़ते हैं और अपनी बातों को अहमियत दे देते हैं, अपने रिश्ते नातों को अहमियत दे देते हैं, और वहां पर मसीह यस्सु अपना फेस उसी तरह से कि देख हमारी तरफ देखते ही रह जाते हैं कि ये किया क्या मेरे बंदे ने मेरे साथ, कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ, ये क्या कर रहा है। तो जीजो, आज का हासिल कलाम यही है कि हमें, हमारे लिए यही भला है कि हम उसकी को अपनी पनाहगाह बनाएं और उसकी नजदीकी को दिल से हासिल करें। खुदावंद इस पाक कलाम से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू।